یہ آکاش وانی کا سری نگر اسٹیشن ہے. شیخ یاسین سے خبریں سنیے. این سی نائب صدر اور لیجسلیٹر پارٹی کے نو منتخب سربراہ عمر عبداللہ نے کی لیفٹننٹ گورنر سے ملاقات. یوٹی میں سرکار بنانے کا کیا دعویٰ پیش. لیفٹننٹ گورنر منوج سنہا نے بھارتی فضائیہ کی وایو ویر وجیتا کار ریلی کو جھنڈی دکھا کر کیا روانہ. کہا مشکل حالات میں ملک اور لوگوں کی خدمت کرنا بھارتی فضائیہ کے ڈی این اے میں شامل. وزیر اعظم انٹرنشپ اسکیم 2024 کے لیے رجسٹریشن کا عمل آج شام سے ہوا شروع. اسکیم کا مقصد 1 کروڑ نوجوانوں کو اگلے 5 سالوں میں ملازمت کا تجربہ فراہم کرنا ہے. اور ملک میں وجے دشمی دسہرہ کا تہوار پورے مذہبی جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا. جموں کشمیر میں بھی تہوار کا جشن، کئی تقریبات کا انعقاد. پیش ہے خبروں کی تفصیل. نیشنل کانفرنس کے نائب صدر اور لیجسلیٹر پارٹی کے نو منتخب سربراہ عمر عبداللہ نے کل شام راج بھون سری نگر میں لیفٹننٹ گورنر منوج سنہا کے ساتھ ملاقات کر کے یوٹی میں سرکار بنانے کا دعویٰ پیش کیا. عمر عبداللہ نے ایل جی کو پارٹی کے صدر فاروق عبداللہ کی جانب سے مکتوب سونپا، جس میں عمر عبداللہ کو لیجسلیٹر پارٹی کا سربراہ منتخب کرنے کی تصدیق کی گئی ہے. علاوہ ازیں انہوں نے ایل جی کو اپنے اتحادیوں کانگریس اور سی پی آئی ایم کے علاوہ عام آدمی پارٹی اور 4 آزاد امیدواروں کے حمایتی خط بھی سونپے. بعد میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے عمر عبداللہ نے کہا کہ انہوں نے ایل جی سے گزارش کی ہے کہ وہ سرکار کی حلف برداری کے لیے جلد از جلد تاریخ متعین کریں تاکہ عوام کی منتخبہ سرکار اپنا کام سنبھال سکے. یہ بات قابل ذکر ہے کہ جموں کشمیر کی 90 رکنی اسمبلی کے لیے حال ہی میں 3 مرحلوں کے تحت چناؤ کرائے گئے، جس میں نیشنل کانفرنس 42 سیٹیں جیت کر سب سے بڑی واحد جماعت کے طور پر ابھر کر سامنے آئی. این سی کے اتحادیوں کانگریس اور سی پی آئی ایم نے بالترتیب 6 اور 1 نشستیں حاصل کی اور اس طرح اتحاد نے چناؤ میں واضح اکثریت حاصل کی. بی جے پی چناؤ میں 29 نشستیں جیت کر دوسرے نمبر پر رہی. توقع ہے کہ اگلے چند روز میں جموں کشمیر کی نئی عوامی حکومت کے وزیر اعلیٰ اور وزراء کو حلف دلایا جائے گا. نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا ہے کہ جموں کشمیر کے لوگوں کی راحت رسانی پر اولین ترجیح دی جائے گی. وادی کے مختلف علاقوں سے آئے پارٹی کارکنوں سے سری نگر میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر اسمبلی کے 90 نو منتخب ارکان لوگوں کی خدمت کے لیے ہم وقت دستیاب رہیں گے. انہوں نے کہا کہ حالیہ انتخابات میں جمہوریت کی جیت ہوئی ہے اور جیت کا صحرا عوام کے سر جاتا ہے. ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے پارٹی کارکنوں سے تلقین کی کہ وہ خود کو عوام کی خدمت کے لیے وقف رکھیں. پارٹی ہیڈ کوارٹر سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ پارٹی سے وابستہ کئی نو منتخب ممبران اسمبلی نے بھی آج سری نگر میں ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور عمر عبداللہ کے ساتھ ملاقات کر کے چناؤ میں نیشنل کانفرنس کی شاندار جیت پر انہیں مبارکباد دی. لیفٹننٹ گورنر منوج سنہا نے بھارتی فضائیہ کی طرف سے منعقد کی گئی وایو ویر وجیتا کار ریلی کو اتراکھنڈ وار میموریل کے سابق فوجیوں کے ساتھ مل کر جھنڈی دکھا کر روانہ کیا. راج بھون میں ایئر واریئرز کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے لیفٹننٹ گورنر نے کار ریلی کے تمام شرکاء کو مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا. لیفٹننٹ گورنر نے کہا کہ بھارتی فضائیہ کے پاس بہادری، ہمت اور قربانی کی قابل فخر میراث ہے. انہوں نے کہا کہ مشکل حالات میں ملک اور اس کے لوگوں کی خدمت کرنا بھارتی فضائیہ کے ڈی این اے میں شامل ہے. لیفٹننٹ گورنر نے جنگ کے وقت ریسکیو آپریشنز اور قدرتی آفات میں آئی اے ایف کے اہم کردار کی بھی تعریف کی. ریلی کے دوران ایئر واریئرز مختلف یونیورسٹیوں اور کالجوں میں مقامی نوجوانوں سے خطاب کریں گے اور انہیں مسلح افواج میں شامل ہونے کی ترغیب دیں گے. لیفٹننٹ گورنر نے کہا کہ
कौम मुसल्लह अफवाज की शुक्रगुजार है कि उन्होंने एक ज्यादा महफूज और पुरअमन माहौल को यकीनी बनाया ताकि भारत की हमजोहत तरक्की और खुशहाली की तरफ तेज रफ्तार मार्च को मुमकिन बनाया जा सके। उन्होंने मजीद कहा कि पिछले 10 सालों में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में सरहदी इलाकों का बुनियादी ढांचा और राब्ता मजबूत हुआ है। कबल अज़ें भारतीय फ़ज़ाइया की 92वीं सालगिरह के मौके पर वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल वायु वीर विजेता का रैली को रुखसत किया। 50 से ज्यादा हवाई जंगजू जो लद्दाख के ख्वास और अरुणाचल प्रदेश के तवांग तक मुहिम चला रहे हैं, कल 7000 किलोमीटर का फासला तय कर रहे हैं। लोगों में आईएएफ की शानदार तारीख के बारे में बेदारी पैदा करेंगे और नौजवानों को मुसल्लह अफवाज में शामिल होने की तरगीब देंगे। इस मौके पर एयर ऑफिसर कमांडिंग श्रीनगर एयर कमोडोर प्रभात मलिक, टीम लीडर विंग कमांडर विजय प्रकाश भट्ट, रैली के चेयरमैन एस तरुण विजय और दीगर सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म इंटर्नशिप स्कीम 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल आज शाम 5 बजे से शुरू हुआ। ये इक़दाम नौजवानों को हकीकी जिंदगी के कारोबारी माहौल में तजुर्बा हासिल करने में मदद करने के लिए 12 माह की इंटर्नशिप पेश करता है। वज़ीर आज़म की इंटर्नशिप स्कीम का मकसद भारत की 500 आला कंपनियों में अगले 5 सालों में 21 से 24 साल की उम्र के मुल्क के 1 करोड़ नौजवानों को मुलाजमत का तजुर्बा फराहम करना है। पोर्टल पर अब तक 193 कंपनियों की जानिब से तकरीबन 91,000 इंटर्नशिप के मौके पेश किए जा चुके हैं। हुकूमत का मकसद माली साल 2024-25 के दौरान 1,25,000 इंटर्नशिप के मौके फराहम करना है। रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन पोर्टल pminternship.mca.gov.in के जरिए अमल में लाया जा रहा है। एक इंटर्न को 12 माह के लिए माहाना 5,000 रुपए की माली इमदाद और 6,000 रुपए की यक वक्ती ग्रांट मिलेगी। जराये के मुताबिक 36 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के 737 अजला में मौके दस्तियाब हैं। ये मौके तेल, गैस और तवानाई, सफर और मेहमान नवाजी, ऑटोमोटिव और बैंकिंग और मालियाती खिदमात समेत 24 शोबों में फराहम किए जा रहे हैं। उम्मीदवार इंटर्नशिप के लिए इस महीने की 25 तारीख तक पोर्टल के जरिए दरख्वास्त दे सकते हैं। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने सरहदी बुनियादी ढांचे को तक़वियत देने की गरज से वर्चुअल तरीके पर आज बुनियादी ढांचे के 75 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और इन्हें मुल्क के नाम वक्फ किया। सरहदी सड़क तंजीम BRO ने 2,236 करोड़ रुपए की लागत से इन्हें तामीर किया है। ये प्रोजेक्ट 11 सरहदी रियासतों और अंडमान और निकोबार जज़ायर समेत मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में तामीर किए गए हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क के शुमाल मशरकी हिस्से और सरहदी रियासतों को तरक्की के कौमी धारे में वापस लाया गया है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि दिफाई मकसद से इन इलाकों की अहमियत को जहन में रखते हुए जरूरी तरक्याती काम में तेजी लाने के लिए मुतअद्दिद इक़दामात किए गए। वज़ीर दिफा ने आज 22 सड़कों, 51 पुलों और 2 दूसरे प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। खबरों का ये बुलेटिन आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से नशर किया जा रहा है। आज मुल्क भर में विजयदशमी या दशहरा का त्योहार मनाया जा रहा है। यह त्योहार भगवान राम की रावण पर फतह की याद में मनाया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की कामयाबी की अलामत है। आज नवरात्रि और दुर्गा पूजा भी इख्ताम पजीर हो रही है। दशहरे के मौके पर सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया, वज़ीर आज़म और दूसरे रहनुमाओं ने अवाम को मुबारकबाद दी है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने अपने मुबारकबादी के पैगाम में कहा कि यह त्योहार नाइंसाफी पर इंसाफ की फतह की अलामत है। उन्होंने इस उम्मीद का भी इजहार किया कि यह त्योहार मुल्क के सभी अवाम के लिए मसरत, कामयाबी और खुशहाली लेकर आएगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने मुबारकबादी के पैगाम में कहा कि मुल्क के अवाम जिंदगी के हर शोबे में माँ दुर्गा और भगवान श्री राम के आशीर्वाद से कामयाबी हासिल करेंगे।
लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस त्योहार के मौके पर मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर की आवाम को मुबारकबाद दी है और सभी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि विजयदशमी का यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की फतह की अलामत है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आवाम से मजीद कहा कि वो भगवान राम के नजरियात और तालीमात पर अमल करें और खुद को मुआशरे की फलाह व बहबूद के लिए वक्फ कर दें। जम्मू कश्मीर में भी दुर्गा अष्टमी का त्योहार मजहबी जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में कटरा में वाक़ा माता वैष्णो देवी के अस्थापन में सबसे बड़ी तकरीब मनाई गई, जहां हजारों की तादाद में श्रद्धालुओं ने हाजिरी दी। कश्मीर वादी में भी ये दिन मजहबी अकीदत के साथ मनाया जा रहा है और इस सिलसिले में मंदिरों को खूबसूरती के साथ सजाया गया है। पंडित बरादरी से वाबस्ता अफराद और अकीदतमंद खीर भवानी मंदिर तुलमुला और टिक्कर कुफाड़ा में कल से ही हाजिरी दे रहे हैं। नई दिल्ली में गुज़श्ता रोज पीएम गति शक्ति पहल के तहत नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप की 81वीं मीटिंग मुनक़द हुई। मीटिंग की सदारत सन्नत और दाखिली तिजारत के फरोग के महकमे के एडिशनल सेक्रेटरी राजीव सिंह ठाकुर ने की। मीटिंग में सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों की वजारत और शहरी हवाबाजी की वजारत के बुनियादी ढांचे के 5 अहम प्रोजेक्टों का जायजा लिया गया। हुकूमत ने कहा है कि इमरजेंसी माने हमल अद्वियात की फरोख्त और तकसीम से मुतल्लिक ज़ाब्तों में कोई तब्दीली नहीं की गई है और ये अद्वियात डॉक्टरों की तशखीस के बगैर बदस्तूर दस्तयाब रहेंगे। श्रीनगर के टैगोर हॉल में नगीनी कल्चरल फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम एक अदबी तकरीब मुनक़्क़द हुई। तकरीब में कश्मीर के नामवर अदीबों, कलमकारों, शायरों के अलावा जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अशखास और ज़राए अबलाग से मुंसलिक मुतअद्दिद शख्सियात ने शिरकत की। मजलिस का आगाज अबुल हसन फारूकी ने तिलावत कलाम पाक और नात शरीफ से किया। मजलिस की सदारत वादी के नामवर शायर, अदीब व ब्रॉडकास्टर अब्दुल अहद फरहाद ने की। तकरीब के दौरान मारूफ शायरा फारूका परवीन के शायरी मजमूए परतव अनवार की रस्म रोनुमाई अंजाम दी गई। किताब पर इंजीनियर शबनम बशीर और एडवोकेट असरार ने तबसरा पेश किया। आज हड्डियों की बीमारी आर्थराइटिस से मुतल्लिक जानकारी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद इस बीमारी की वजूहात, बचाव, परहेज और इलाज से मुतल्लिक जानकारी आम करना है। मौसम महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम मजमूई तौर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 26.8 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत 60 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 32.3 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत 18.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।